सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर नंबर 1 और हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स. So last lecture में we have seen the unification of electricity and magnetism, and along with that we have seen light was also was a consequence of this unification. तो हमने तीनों का unification देख लिया था, electricity, magnetism and light. So उसके consequence में अब हमारा next chapter that we are going to study is the light only. तो light में भी the light has always been a discussion amongst the physicist fraternity for centuries. ठीक है, तो उसके behavior पे और उसके interaction with the matter पे has always been a talking point amongst them. So because of this talking point and different observations आने के बाद different theories of light has come up. ठीक है, so now different theories of light has come up. So we will discuss those theories in brief कि क्या क्या theory थी and how the light की जो theory है किस किस तरीके से evolve हुई. So that is what we are going to look into the optics. ठीक है, through our two chapters, that is ray optics and the wave optics. ठीक है, पर उससे जाने से पहले हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना which is large phenomena which we observe in our day to day life is the rectilinear motion of the light. क्योंकि हमारे को डेली लाइफ में we see that light has been traveling in a straight line. ठीक है, तो हम वो वाला फिनोमिना सबसे पहले देखेंगे. ठीक है, सो आज का जो लेक्चर होगा हमारा, सबसे पहले हम वी आर गोइंग टू सी द बिहेवियर ऑफ लाइट. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सी कि हाउ द लाइट इंटरेक्ट विद द मैटर. सो व्हाट हैपन्स टू द लाइट व्हेन इट इंटरेक्ट विद द मैटर. ठीक है, सो विल टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एंड देन वी आर गोइंग टू सी के दैट द मेजर पार्ट ऑफ आवर स्टडी इन this part 1 of the geometry optics is the rectilinear or the ray optics. ठीक है, the light travels in a straight line. So we will see the factors के what led to the differentiation between the wave optics के light travels in a wave or the light travels in a straight line. So what are the factors that decide those things? And second thing, we are going to see what is the scope of a discussion in the rectilinear motion of the light. ठीक है, then we are going to see कि once we decided कि we are going to study the rectilinear motion, फिर उसके बाद हम उसी में rectilinear motion में will start with a discussion with the how the light has been interacting with the matter. ठीक है, तो first उसमें आता है हमारा reflection of light. ठीक है, so what first thing will come, reflection of light. तो reflection of light में will start with the laws of reflection. ठीक है, laws of reflection देखेंगे. Then along with that we will start looking into the because हमारा rectilinear motion of the light is nothing but के light का interaction with the matter. Then after interaction what is happening with the light, it is getting reflected. ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे we are going to see कि जो हमारा matter है, then in that first thing we are going to see with the plane mirror. ठीक है, कि interaction of the light with the plane mirrors. ठीक है, and the plane mirrors में and along when we will look into the discussion of interaction of light with the plane mirror. ठीक है, तो उसके अंदर we will come across with this object in the image. ठीक है, that is the scope of our discussion in the rectilinear motion. ठीक है, so we will look into the nuances of objects and image. ठीक है, what are the real object, what are the virtual object, what is the real image, what is the virtual image. We will see the nuances of this so that it is going to help us in understanding the interaction of light with the medium or with the different matter. ठीक है, so let us begin with the lecture. So light जो है हमारा, light is the reason फिज़िक्स एग्जिस्ट फॉर अस, बिकॉज फिज़िक्स में जितने भी हम लॉज दे फर्स्ट वी हैव टू सी. ठीक है, फिर देखने के बाद ही उसको हम ऑब्जर्व करते हैं. फर्स्ट सबसे पहली चीज़ हमारे को दिखती है ना, तभी तो फिर हम उसके बाद में उसको सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं क्या है ये, क्यों हो रहा है. ठीक है, क्यों तो बाद में आता है, पहले दिखना तो चाहिए. ठीक है, तो लाइट इज़ द रीज़न दैट द फिज़िक्स एग्जिस्ट फॉर अस इज़ लाइट ओनली. ठीक है, विदाउट लाइट यू विल नेवर ऑब्जर्व द फिजिकल लॉज कुछ दिखते ही नहीं. ठीक है, तो लाइट इज़ एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैरियर. ठीक है, जो भी हमारे लॉज हैं तो दैट इज़ बीन दैट उनकी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ बीन कैरिड थ्रू द लाइट ओनली, बिकॉज लाइट ही से ही हम लोग उसको देखते हैं. देन वी ऑब्जर्व, देन वी स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन इट, देन वी स्टार्ट इंटरनलाइजिंग, विल स्टार्ट थिंकिंग कि वाई दिस इज़ हैपनिंग. सो वाई का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है इन द लाइट इट्स बिकॉज ऑफ द लाइट ओनली. ठीक है, सो लाइट क्या नहीं है, लाइट इज़ नॉट ए मैटर. ठीक है, लाइट इज़ नॉट ए मैटर, लाइट इज़ नॉट ए मैकेनिकल वेव. ठीक है, लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल. इट इज़ नॉट ओनली द विजिबल, जैसा कि हमारे को लगता है लाइट बस एक विजिबल पार्ट है. लाइट जो है विजिबल जो लाइट है हमारे को दिखने वाली जो लाइट है, दैट इज़ ओनली द टाइनी पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, लाइट इज़ नॉट जस्ट के आपका विजिबल पार्ट जो कि हमें दिखता है. ठीक है, लाइट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ अ कंप्लीट पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. लाइट है क्या, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विच इज़ बीन ट्रैवलिंग एंड इट इज़ बीन ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड द इन्फॉर्मेशन. ठीक है, लाइट इज़ बीन ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड द इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द लाइट इज़. ठीक है, नाउ द लाइट का बिहेवियर जो होता है, लाइट का बिहेवियर सबसे पहले जो होता है, लाइट का बिहेवियर कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ लीस्ट टाइम. ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ लीस्ट टाइम, कि लाइट
उसको वो वाला पाथ लेता है कि उसमें जिसको उसको लीस्ट टाइम लगे, ठीक है, लाइट का, ठीक है. सो दैट इज़ वन थिंग. सो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है. तो इस एनालॉजी को आप इस तरीके से देखो, इट्स अ लाइफ गार्ड एनालॉजी, ठीक है. तो इफ सम दिस अ लाइफ गार्ड सिटिंग हेयर ऑन द बीच एंड दिस पर्सन इज बीन डाइंग हेयर, ठीक है. सो नाउ दिस पर्सन इज ऑलमोस्ट अबाउट टू ड्राउन, तो ही स्टार्टेड फॉर द हेल्प, ठीक है. तो दैट मीन्स दिस लाइफ गार्ड विल गो, ही हैज़ टू रीच टू द पर्सन ड्राउनिंग इन द लीस्ट टाइम, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट द लाइट ऑलवेज ट्रैवल, बिकॉज लाइट का क्या है, लाइट यहाँ से जाके इधर भी जा सकती है, लाइट इधर से जाके इधर भी जा सकती है. जैसे लाइफ गार्ड भी आपका इधर से जाके इधर भी जा सकता है, इधर से जाके इधर है. तो विल नॉट चूज़ द लीस्ट पाथ, ठीक है. ही इज़ ऑलवेज चूज़ द लीस्ट टाइम, ठीक है. कि बिकॉज यहाँ पे कुछ और स्पीड होगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ और स्पीड होगी. इन द वाटर ही विल बी हैविंग डिफरेंट स्पीड, इन द लैंड ही विल बी हैविंग ए डिफरेंट स्पीड, ठीक है. सो व्हेन ही इज़ हैविंग अ डिफरेंट स्पीड देन ही हैज़ टू डिसाइड लीस्ट पाथ. तो आपका ये इस तरीके से बन जाएगा, जो डायगनल वाला हो जाएगा ये लीस्ट पाथ हो जाएगा. बट ही हैज़ टू डिसाइड कि ही हैज़ टू रीच इन द लीस्ट टाइम, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट द नेचर ऑफ द लाइट, इट इज़ ट्राइंग टू ट्रैवल इन द लीस्ट टाइम, ठीक है, नॉट द लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है. सो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन. लाइट ऑलवेज ट्रैवल कि उसको लीस्ट टाइम लगे ए से बी पहुंचने में. अगर मेरे को ए से बी पहुंचना है यहाँ से यहाँ तक, तो इट शुड रीच इन द लीस्ट टाइम, तो वो वाला पाथ लेगी लाइट, ठीक है. सो नाउ लाइट का जो बिहेवियर है, तो लाइट का बिहेवियर है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. देयर इज़ अ रेक्टिलिनियर बिहेवियर विच द आउटकम ऑफ दैट इज़ द ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स. सेकेंड लाइट का जो बिहेवियर है दैट इज़ तो इज़ द वेव बिहेवियर, ठीक है. देयर वी आर गोइंग टू सी जो हम फिनोमिना देखेंगे, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, दीज आर द फिनोमिना हैपन्स इन द व्हेन वी कंसीडर द लाइट इज़ हैविंग द वेव नेचर. और लाइट का जब मेरा रेक्टिलिनियर नेचर, रेक्टिलिनियर मीन्स लाइट इज़ बिन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. देन वी आर कंसिडरिंग जितना भी हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ ऑन ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, ठीक है. तो यहाँ पे हम कब डिसाइड करते हैं कि हमारा लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन है या वेव मोशन है, ठीक है. तो फॉर रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो इसमें हमारा जो डिसाइडिंग पॉइंट होता है उसमें ये देखते हैं कि हमारी जो लाइट है एंड द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन दोनों में रिलेटिव जो है मेरा साइज़ का डिफरेंस कितना है, ठीक है. अगर आपका लाइट का जो इफ़ योर लाइट की जो वेवलेंथ है, इफ़ योर लाइट की वेवलेंथ इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन योर ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ, देन यू कैन कंसीडर द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है. तो फॉर इंस्टेंस कि अगर आपका ये दो गैप है एंड दिस गैप इज़ सो मच, ठीक है, लाइट की जो लैम्डा है उससे ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, इट इज़ द गैप इज़ वेरी मतलब इट्स वेरी ह्यूज देन योर लैम्डा ऑफ द लाइट. तो इसमें क्या होगा, आपकी लाइट विल बी ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन जाएगी एंड हेयर यू विल सी द पैच ऑफ लाइट, और ये सारा शेडो में होगा, ये वाला रीजन सारा मेरा शेडो में होगा, और ये वाला आपको पैच दिखेगा बस स्ट्रॉन्ग लाइट का, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट द रेक्टिलिनियर कि लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. स्ट्रेट लाइन में लाइन ट्रैवल कर रही है. वाई? बिकॉज ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ माई लाइट, ठीक है. दैट डिस्टेंस इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ लाइट, ठीक है. इन दैट केस यू फॉलो द ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स एंड द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द लाइट. अगर आपका ये जो डिस्टेंस है दैट इज दिस डिस्टेंस जो डी है दैट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल विद द लैम्डा ऑफ लाइट, ठीक है. लैम्डा ऑफ लाइट के बराबर आ गया आपका ये डिस्टेंस. देन यू विल सी कि जो यहाँ पे आएगी देन इट विल स्टार्ट शोइंग द वेव नेचर. तब आपका जो लाइट बनेगा यहाँ पे यू विल सी दिस मच पोर्शन इज हैविंग द लाइट, और ये वाले में शेड हो जाएगा, ठीक है. और आप इसको बिल्कुल और छोटा करने लोगे, इफ द लैम्डा इफ़ योर डी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू लैम्डा ऑफ लाइट, ठीक है. देन इन दैट केस जितना ये छोटा करते जाओगे उतना ये आपका द वेव नेचर विल बी मोर कमिंग आउट, ठीक है. उतना ज़्यादा उसका वेव नेचर कम आउट होगा, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा डिसीजन मेकर क्या होता है कि हम रेक्टिलिनियर स्टडी करेंगे या वेव स्टडी करेंगे. तो रेक्टिलिनियर स्टडी करने के लिए हमारा लैम्डा ऑफ लाइट, ठीक है, आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी वेरी वेरी मच लेस देन द लैम्डा ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो फॉर इंस्टेंस हम डे टू डे लाइफ में जो डील करते हैं लाइक मिरर्स हो गए, लेंसेज हो गए, तो उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है दैट ऑब्जेक्ट की जो लैम्डा होती है दैट इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन द जो ऑब्जेक्ट का जो आपका साइज़ होता है दैट इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन द साइज़ ऑफ योर लाइट. तो इन दैट केस जितने भी हमारे डे टू डे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जब भी हम लाइट के रिगार्डिंग चीज़ें देखते हैं देयर वी आर फॉलोइंग अप द ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स ऑफ द लाइट, ठीक है. कि हम ये कंसिडर करते हैं लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. सो ये समझ में आ गया ना. तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस होता है, और वेव कब हम डिस्कशन करते हैं वेव का, व्हेन योर लैम्डा ऑफ लाइट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू योर दिस जो आपका जिससे इंटरेक्ट कर रहा है मेरा ऑब्जेक्ट,
उसके बराबर, उसके साइज़ के बराबर हो, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देखो, इसको एक्सप्लेन विद दिस एनालॉजी कि एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है एंड यू आर हैविंग दिस बिग ट्रक ट्रैवलिंग, ठीक है। ये बहुत बड़ा सा ट्रक जा रहा है यहाँ पे और ये छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, तो इस बड़े से ट्रक के लिए छोटे से पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इट विल गो फ्रॉम एयर, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस ओनली कि यहाँ पे साइज़ का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों में साइज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इस पत्थर की, ठीक है। अगर यहीं पे ये कोई एक छोटी सी एंट जा रही है यहाँ पे, ठीक है, छोटी सी एंट जा रही है, तो इसके लिए यहाँ पे रिलेटिव साइज़ का डिफरेंस बहुत बहुत कम है, ठीक है, इन दोनों में। तो यहाँ पे दिस एंट को इस पत्थर की बहुत ज़्यादा वैल्यू लगेगी, ठीक है। देन फॉर हिम दिस स्मॉल स्टोन इज़ क्वाइट बिग फॉर हिम, ठीक है। तो सेम वे हमारे यहाँ पे जब लाइट का आपका ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाता है, देन यू कैन से इट इज़ गोइंग टू फॉलो द वेव नेचर। और जब आपका लैम्डा ऑफ लाइट इज़ वेरी वेरी मच लेस देन लैम्डा ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट सारे बड़े बड़े होते हैं, सो इन दैट केस वी विल सी द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द लाइट, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर गैप डी इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा, तो आपको देखेगा यहाँ पे इन दिस पोर्शन यू आर हैविंग द लाइट और ये सारा शेडो में रहेगा। अगर ये डिस्टेंस में धीरे धीरे कम करता जाऊँगा तो धीरे धीरे इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ वेव नेचर, ठीक है। और जब ऑलमोस्ट कंपेरेबल आ जाएगा मेरा लैम्डा ऑफ लाइट इज इक्वल टू दिस डी, देन इन दैट केस यू विल सी द मोर वेवी नेचर ऑफ दैट, ठीक है। सो लाइट विल इज नॉट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इनटू इट। फिर लेटली हम लोगों ने डिसाइड हो गया था, पहले स्टार्टिंग थ्योरी हमारी यही चलती थी कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ द फर्स्ट थ्योरी विच वी कॉल द कॉर्पस्कुलर थ्योरी। फिर उसके बाद जो डेवलप हुआ था हमारा आफ्टर सीइंग सर्टेन ऑब्जर्वेशन, तो हमने देखा कि हमारी लाइट डज नॉट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इट ट्रैवल इन अ वेव। तो एक नेक्स्ट सेट हो गया था कि लाइट इज़ अ वेव, नॉट लाइट डज नॉट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन अ वेव मोशन, ठीक है। और फिर हमने वेव मोशन के जो फिनोमेना देखे थे, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन कैन ईजिली एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ द वेव। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के जो फिनोमेना हमें दिखे थे दैट कैन ईजिली एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर। और बाकी जो रेक्टिलिनियर मोशन के जो फिनोमेना हमारे पास आए थे, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये तो हमारा वेव नेचर भी एक्सप्लेन कर पा रहा था, और ये एक्स्ट्रा हमारे नेचर भी एक्सप्लेन कर पा रहा था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी। तो डिसाइड हुआ कि लाइट इज़ अ वेव, नॉट अ रे, और द रेक्टिलिनियर नहीं मूव करता। तो रेक्टिलिनियर का मतलब पार्टिकल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स हियर द वेव इज मूविंग इन अ वेव, ठीक है, और लाइट इज मूविंग एज अ वेव नेचर। देन लेटली हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हुआ था दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन अगेन इट्स स्टेबलाइज के लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ पार्टिकल वे, इन अ पार्टिकल मैनर ऑल्सो इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो देर ऑल्सो इट्स बीन ऑब्जर्व के लाइट, फिर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि लाइट हैज़ हैविंग अ डुअल नेचर, इट शोज़ द पार्टिकल नेचर ऑल्सो एंड द वेव नेचर ऑल्सो, ठीक है। तो बट हमारा जो डिस्कशन होगा, अभी हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे नहीं, विल बी डिस्कसिंग द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, जिसके हम लोग ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स देखेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का स्कोप पढ़ेंगे कि लाइट का इंट्रैक्शन विद द ऑब्जेक्ट्स लाइक लेंसेज हो गए हमारे, एंड सरफेसेस हो गए, डिफरेंट सरफेसेस हो गए, देन वी आर हैविंग द मिरर्स एंड ऑल। तो दिस ऑल द वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स देखेंगे, देयर वी आर गोइंग टू स्टडी द इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड ऑल, ठीक है, राइट। सो देन अब उसके बाद होता है हमारा कि लाइट जब इंटरेक्ट करती है सरफेस के साथ, तो लाइट के साथ क्या होगा। तो सरफेस डिसाइड द फ्यूचर ऑफ लाइट, कि लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, अब्जॉर्ब करेगी या स्कैटर करेगी, ठीक है। तो लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है, लाइक फॉर इंस्टेंस इन द मिरर वाले केस में, ठीक है, वन वे के जो आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट द लाइट, लाइक फॉर इंस्टेंस इन मिरर, ठीक है। वो होता किस तरीके से है, फॉर इंस्टेंस जो रिफ्लेक्शन होता है तो वो सेम मीडियम में हो जाता है, लाइट ऑब्जेक्ट है तो लाइट यहाँ पे गिरेगी, तो लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, ठीक है। और जो होता किस तरीके से है कि आपकी जो लाइट होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो आपका जो मैटर होगा, जो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा लाइक मिरर, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग एंड दे विल री एमिट द लाइट बैक एंड री रेडिएट इन द डायरेक्शन, ठीक है। कि लाइट हमारे को जो इंट्यूशन होता है कि लाइट यहाँ से सेम लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इट इज़ नॉट द सेम लाइट, ये लाइट आई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे इसमें मिरर के जो मैटर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इलेक्ट्रॉन्स देन गॉट ऑसिलेटेड, दे गॉट एक्साइटेड, देन दे री एमिट द लाइट, ठीक है, दे स्टार्टेड री एमिटिंग लाइट, ठीक है। सो हियर इज द री एमिशन ऑफ द लाइट एंड द री रेडिएशन, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इज when the light travel in a medium, ठीक है, when the light travel so it goes into the another medium rather than in the same medium, ठीक है। So it is
द स्पीड गॉट चेंज इन डिफरेंट, द स्पीड गॉट चेंज एंड द डायरेक्शन गॉट चेंजेस, ठीक है, एंड द लाइट विल गो इन टू द डिफरेंट मीडियम, ठीक है। लाइट यहाँ पे एक तो हो गया यहाँ से रिफ्लेक्ट करके चली गई, और दूसरा जब इस मीडियम के अंदर लाइट ट्रैवल करने लगी, सो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, ठीक है। थर्ड इसके लाइट पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर गई, ठीक है, यहाँ लाइट पूरी की पूरी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर गई, ठीक है। सो लाइट just absorb in the new medium, ठीक है। so here the light dies, ठीक है, light has not gone anywhere, ठीक है, but the energy lives, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे नहीं रही है, बट एनर्जी इज स्टिल देयर, बिकॉज दैट जो लाइट पूरी की पूरी अपनी मोमेंटम ट्रांसफर करती है, दैट गॉट ट्रांसफर, सो जो हमारा मैटर होगा, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, दैट गॉट हीट अप, ठीक है, दैट गॉट हीट अप, एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट द सोलर पैनल जो होता है हमारा, ठीक है। here the light got absorbed and that got heat up and from there we can get the electricity, ठीक है। नेक्स्ट है सर स्कैटरिंग, ठीक है। देयर इज अनदर फिनोमेना कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है दैट स्कैटर्स द लाइट इन, दैट एब्जॉर्ब द लाइट एंड री एमिट इट। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन में होता है, जो री एमिशन हो रहा है, दैट इज इन वन डायरेक्टेड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, वन फोकस डायरेक्टेड डायरेक्शन में। यहाँ पे एब्जॉर्ब करके देन इट स्टार्टेड स्कैटरिंग इन रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ओनली दैट यू कुड एबल टू सी, ठीक है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से देख पाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ दिस स्कैटरिंग ओनली, ठीक है। इट डिसाइड्स व्हाट वी सी, ठीक है। अगर वो सारा का सारा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दिस ऑब्जेक्ट इज देयर और इस पर लाइट पड़ी, ठीक है, अगर इसने सारी की सारी लाइट अपनी ऑब्जर्व कर ली, ठीक है, अगर इसने सारी की सारी यहाँ पे लाइट ऑब्जर्व कर ली तो वैसे नहीं दिखेगा, और लाइट यहाँ पे इसने रिफ्लेक्ट करके इस डायरेक्शन में भेज दी, तो जो लोग यहीं पे बैठे होंगे इसी वाले पोर्शन में जो लोग देख रहे होंगे इसको, वो उन्हीं को ही दिखेगा, जो यहाँ पे बैठा होगा उसको नहीं दिखेगा ये वाला ऑब्जेक्ट। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट ना, कि आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस पर अगर लाइट आ रही है सारी डायरेक्शन से, तो इट इज़ स्कैटरिंग इन ऑल द डायरेक्शन। वो यहाँ वाले बंदे को भी दिखेगा, यहाँ पे जो बैठा होगा उसको भी दिखेगा, यहाँ पे जो बैठा होगा उसको भी दिखेगा। तो स्कैटरिंग इज़ द रीज़न विद विच यू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड स्कैटरिंग इज़ द रीज़न बिहाइंड के वाई यू सी द स्काई ब्लू एंड वाई यू सी the redness in the or the orangeness in the horizon when the sun rise or sunset होने से पहले, ठीक है। so that is the reason of the scattering, ठीक है। so you go you see these things in NCERT has been very well explained. So if we see के I think I'll see के whether in the last part of the chapter we are going to cover this up, ठीक है। so briefly we are going to cover it up, right। सो रेक्टिलिनियर मोशन जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर आप बेस क्या है कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी है, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसका जो एक मैंने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास 3 बोर्ड्स हैं जिसके अंदर ये स्मॉल पिन होल है, ठीक है। तो यहाँ से इफ़ दे आर ऑल अलाइंड, ठीक है, तो यहाँ से लाइट इट्स बीन ट्रैवलिंग एंड इट इज़ बीन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, यू विल सी द लाइट ट्रैवलिंग हियर। बट नाउ यू जस्ट मेक दिस, ये जो बीच वाली मेरी रेक्टेंगुलर प्लेट है इसको मैंने नीचे कर दिया। नाउ दिस होल इज़ नॉट हियर एंड दिस होल इज़ bigger size than the lambda of light, ठीक है। then only this rectilinear motion of the light can be explained, ठीक है। this hole will be bigger than the lambda of the light। अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ से तो लाइट इससे ट्रैवल करके चली गई, बट यहाँ पे क्या होगा, लाइट कैन नॉट ट्रैवल, ठीक है। इसके बाद लाइट इज़ नॉट ट्रैवलिंग, ठीक है, इसके बाद लाइट यहाँ पे ट्रैवल नहीं हुई, बट एनीथिंग कैन हैपन, लाइट कुड बी रिफ्लेक्टेड, लाइट कुड बी रिफ्लेक्टेड, लाइट कुड बी ऑब्जर्व, लाइट कुड बी स्कैटर्ड, ठीक है। यहाँ के जाने के बाद बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये होल यही है, ठीक है, यहाँ पे बस यही होल था, बट इफ़ द लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन द लाइट कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, ठीक है, इसके बियॉन्ड लाइट नहीं जाएगी, बस यहीं पे रुक जाएगी लाइट, ठीक है। सो दैट शोज द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द लाइट, ठीक है। सो नाउ द ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स क्या था हमारा स्कोप कि व्हेन द वेवलेंथ डज नॉट मैटर, ठीक है, आपका लाइट की वेवलेंथ मैटर नहीं कर रही बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्वाइट बिग, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जैसे हमने देखा था एक बिग ट्रक इज मूविंग और उसके सामने आपका एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है एंड द बिग ट्रक इज मूविंग, ठीक है। ये जो बिग ट्रक जा रहा है इसके लिए जो होता है तो इस छोटे से पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है। सेम वे व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट डज नॉट मैटर, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज क्वाइट बिग, देन इन दैट केस यू विल स्टडी द ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, ठीक है, वेयर द लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ रे, ठीक है, लाइट रे में ट्रैवल कर रही है, दैट इज द स्कोप ऑफ ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स जो हम देखेंगे। लाइट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग इन अ रे, there is no spreading or the interference of the light, ठीक है, and direction matter, ठीक है। here when we study the ray optics, here the direction matters not the phase, ठीक है, और ये phase matter करेगा, that is mostly in the wave optics। जब हमारा lambda आ जाएगा, जब हमारा wavelength आ जाएगा, there the phase is the critical quantity that matters a lot in your refraction, in your interference, diffraction and all those phenomena that we are going to study in the wave motion, ठीक है। बट यहाँ पे जो होगा आपका डायरेक्शन मैटर करेगा, ठीक है। नाउ रे ऑप्टिक्स देखते हैं। सो रे ऑप्टिक्स का स्कोप क्या है, द रे ऑप्टिक डील्स विल डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ योर इमेज, ठीक है,
इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज देयर, सपोज दिस लेंस इज देयर। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ और ये ऑब्जेक्ट के साथ ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एन इमेज। ठीक है, तो स्टडी ऑफ दिस थिंग के द स्टडी ऑफ दिस थिंग दैट डील्स, रे ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ दिस दैट डील्स विद द डिटरमाइनिंग द पोजिशन, आपकी पोजिशन ऑफ दिस इमेज, नेचर ऑफ दिस इमेज के किस तरीके से बन रही है, आपकी इरेक्ट बन रही है या फिर आपकी वर्चुअल बन रही है या फिर आपकी डिमिनिश्ड बन रही है या फिर आपकी मैग्नीफाइड बन रही है। सो द नेचर ऑफ द इमेज बताएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और इमेज, ठीक है, इन तीनों के रे ऑप्टिक डील्स विद डिटरमाइनिंग all these things, ठीक है। So ray optics mainly determine the position of the nature of the image formed, ठीक है, when the object is placed in front of the optical instrument, ठीक है, ये हमने देख ही लिया। when the wavelength does not matter, when your optical element जो होता है that is much greater than your lambda of light, ठीक है। when your optical instrument is almost of your lambda of light, then you cannot follow the rectilinear motion, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू कि ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू लुक, बिकॉज यहाँ पे रे ऑप्टिक्स का हमारा जो स्टडी का पर्पस यही है, वी आर गोइंग टू स्टडी कि इमेज किस तरीके से बन रही है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑप्टिकल एलिमेंट, ठीक है। ऑप्टिकल एलिमेंट हम लोग देखेंगे इसमें पहले मिरर्स देखेंगे, ठीक है। मिरर्स में भी हम दो तरीके के देखेंगे, प्लेन मिरर्स देखेंगे एंड द स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे, ठीक है। फिर हम लेंसेज देखेंगे, लेंसेज देखेंगे एंड डिफरेंट लेंसेज से पहले हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल सर्फेसेस देखेंगे, स्फेरिकल सर्फेसेस, ठीक है, डिफरेंट स्फेरिकल सर्फेसेस देखेंगे। फिर उसके बाद हम इन द एंड वी आर गोइंग टू सी लेंसेस, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट वी सी, और इन सब में हम लोगों को ये देखना है कि ऑब्जेक्ट से इमेज किस तरीके से बन रही है, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस नेचर ऑफ द इमेजेस, राइट। नाउ ऑब्जेक्ट देखते हैं हमारा कि ऑब्जेक्ट में व्हाट इज दिस रियल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है कि सोर्स ऑफ द लाइट रेज, जहाँ से हमारी लाइट रेज आ रही है, सोर्स ऑफ द लाइट रेज इज व्हाट वी कॉल द ऑब्जेक्ट एंड that source of light is going to incident on our optical element, ठीक है। तो object can be your point object or object can be your extended object, and extended object is nothing but the collection of your points only, ठीक है। now object जो होते हैं हमारे, दो ऑब्जेक्ट है हमारे, रियल एंड द वर्चुअल, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इसी में डील होगा, और रियल वर्चुअल में। तो रियल क्या होता है आपका, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हेन टू और मोर इंसिडेंट रेज एमिनेट और सीम्स टू बी एमिनेटिंग फ्रॉम इट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ से जो रेज निकल रही हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द रियल ऑब्जेक्ट, के रेज वहाँ से निकल रही हैं, टू और मोर इंसिडेंट रेज एमिनेट और सीम्स टू बी एमिनेट के निकल रही हैं यहाँ से, एमिटिंग आउट ऑफ दिस इज व्हाट वी कॉल द ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, एंड विच इज एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है, विच इज एक्चुअली प्रेजेंट है, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आपकी रेज कहीं बहुत दूर से आ रही है, इट इज़ बिन, अगर ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो इट इज़ बिन कन्वर्जिंग एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है। इट इज़ कन्वर्जिंग, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा, कन्वर्जिंग सेट ऑफ रेज इफ इट्स नॉट बीन इंटरसेप्टिंग and they will meet at certain point, ठीक है। that point of convergence, that is the virtual point, and this is what we call the virtual object, ठीक है। रियल क्या है कि वहाँ से रियल में the rays is been moving, और virtual क्या है कि the rays has been coming and it is supposed to be meet at point, converge at a point, but आपका virtual object यहाँ पे आ गया, ठीक है। so this is my आपका optical instrument आ गया, so this is my virtual object, ठीक है, this is your virtual object। real object यहाँ से light emit कर रही है, ठीक है। now इसको याद रखना, यहाँ से डाइवर्ज करती है रियल में से, लाइट इज़ बिन डाइवर्जिंग फ्रॉम हेयर, और हेयर वर्चुअल ऑब्जेक्ट में लाइट इज़ बिन सीम्स टू बी कन्वर्जिंग, एंड दैट इज़ बिफोर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना, ये दोनों बिफोर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद जो होगा, उसके बाद लाइट के बाद, दैट इज गोइंग टू फॉर्म द इमेज, ठीक है, उससे पहले वाली चीज़ें। तो टू रेज दैट एमिट और डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट वी कॉल इट रियल ऑब्जेक्ट, एंड द टू रेज दैट इज कन्वर्जिंग वी कॉल इट अ वर्चुअल, ठीक है, कन्वर्जिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे आपका यू विल गेट अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, एंड इट इज़ सपोज टू मीट अप एट दिस पॉइंट, ठीक है, और वो मीट नहीं कर पा रही है, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द लाइट गॉट चेंज इट्स बिहेवियर, ठीक है। सो नाउ इमेजेस देखते हैं हम, ठीक है, व्हाट आर द इमेजेस, ठीक है। तो इमेजेस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और द अपरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आफ्टर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, जो बिफोर हो रहा था, इसके बिफोर डाइवर्जेंस हो रहा था, और इसके ये कन्वर्जेंस हो रहा था बिफोर इट, ठीक है। इट इज़ कन्वर्जिंग एट सर्टेन पॉइंट, बट यहाँ पे ये नहीं आता होता, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। इट इज़ बिफोर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे क्या है कि इट इज़
पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स यहाँ से ये रियल ऑब्जेक्ट है, इससे डाइवर्ज हुई, ये मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब जो कन्वर्जेंस हो रहा है इसके बाद, दिस कन्वर्जेंस इज वी कॉल द इमेज, ठीक है। ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, और द अपरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस मीन्स ये रियल ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से सॉरी यहाँ पे है वाला, ठीक है। ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है। पहले ये मतलब हम यहाँ पे हमारी जो इमेज है दैट इज़ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। दैट यहाँ से हुई, ठीक है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद इट गॉट कन्वर्ज, ठीक है। that is your point of convergence. Another way to look into the point of convergence is with the virtual object, ठीक है। तो virtual object क्या होता है हमारा कि light has been coming and it has been converging, और उससे पहले हमारा एक उससे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, ठीक है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब इससे रिफ्लेक्ट होकर जो ये लाइट यहाँ पे जाएगी, ठीक है, और ये जो होगी दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। जो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, हमारा जो कन्वर्जेंस इससे जो कन्वर्जेंस जो यहाँ पे हो रहा है हमारा कि इससे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के होने के बाद जो कन्वर्जेंस हो रहा है दैट इज़ व्हाट वी कॉल द दैट इज़ व्हाट द आर रियल इमेज इन दिस, ठीक है। तो रियल इमेज इज द रिफ्लेक्टेड और द रिफ्लेक्टेड रेट दैट एक्चुअली कन्वर्ज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ठीक है। रियल इमेज कौन सी है, जो स्क्रीन के एक्चुअली मीटअप कर रही हैं, ठीक है। दीज आर द एक्चुअल वन विच इज़ मीटिंग, एंड इफ़ यू प्लेस अ स्क्रीन हेयर एंड दे विल फॉर्म अ ब्राइट स्पॉट, ठीक है। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस पर काफ़ी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इमेज कौन सी होती है जो स्क्रीन पे बन रही है, दैट इज़ अ रियल इमेज, ठीक है। यहाँ पे हमारी रियल इमेज बनेंगी दैट पॉइंट एक्चुअली कन्वर्ज, ठीक है, पॉइंट एक्चुअली मीट, ठीक है। आफ्टर, यहाँ पे यही याद रखना है कि आफ्टर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद, ठीक है। और सेकंड क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस देखते हैं। पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है हमारा वर्चुअल इमेज, ठीक है। आपका ये रियल ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। व्हेन द लाइट आफ्टर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मीट एट एनी पॉइंट बट इट इज एमनेट टू बट इट डज नॉट मीट एट एनी पॉइंट बट अपीयर टू एमनेट फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लाइट हमारी निकल रही थी दैट इज़ कि हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले ये एमिट कर रही थी, ठीक है। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद अगर लाइक हमें लग रही है, फील हो रही है कि बाहर निकल रही है, ठीक है, एमिट कर रही है। तो फॉर इंस्टेंस अगर हमारा ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो लाइट यहाँ से गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके गई, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट करके जा रही है तो इट सीम्स टू बी एमिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ माई वर्चुअल इमेज, ठीक है, वेयर द लाइट आफ्टर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नॉट मीट अ पॉइंट, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये तो कोई कहीं किसी पॉइंट पे मिलेंगे नहीं, ये तो यहाँ पे जाएंगी, ठीक है। बट इट सीम्स टू बी एमिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से लग रहा है, अगर मैं इसको बैक ट्रेस करूँ तो मेरे को लग रहा है यहाँ से एमिट हो रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द वर्चुअल इमेज, ठीक है। दैट इज़ अपरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो रही है आपकी, तो दिस इज़ योर अपरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। है नहीं रियल में बट इट सीम्स टू बी इट, ठीक है। एंड बोथ द थिंग्स इज आफ्टर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात, ठीक है। सो दिस इज़ योर वर्चुअल, सो दिस कैन बी योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑल्सो, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। बट इन वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, दैट इज़ योर कन्वर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग होती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट में, और वर्चुअल इमेज में क्या है, दिस इज़ माई डाइवर्जिंग आफ्टर दिस, ठीक है। और ये मेरा इससे पहले का सीन है, जो इससे पहले हो रहा है, और ये मेरा इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वाला सीन है, ठीक है। ये याद रखना बस इसमें, वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट में, ठीक है। नाउ वी विल सी our first what is going to happen after when the light interact with the matter. तो पहली चीज़ हम लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेन द लाइट स्ट्राइक एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, ठीक है, द मीडिया एयर एंड ग्लास का मीडिया है, पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। सो पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड, सो यहाँ से लाइट आई आपकी, सो आफ्टर इट इंटरेक्टिंग विद दिस मीडियम, सो पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू द सेम मीडियम, दैट इज व्हाट वी कॉल द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो वाई इट इज़ बीन हैपनिंग, तो वी विल सी अ बिट ऑफ कि क्या उसके पीछे हो रहा है। तो लाइट क्या आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मटेरियल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है उसको पुश एंड पुल करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो मटेरियल के अंदर वो ऑसिलेट करेंगे, जब वो ऑसिलेट करेंगे दैट इज मीन दे आर गोइंग टू एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। वो जो ये हमें जो एक हमारे को जो इनिशियल इंट्यूशन होती है और हमारे को जो अभी तक लगता है कि ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जो ये वाली लाइट है दैट इज़ ओनली रिफ्लेक्टिंग, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये वाली लाइट तो जो यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया एंड दे स्टार्टेड ऑसिलेटिंग एंड दे एमिटिंग द लाइट, ठीक है। दे री एमिट द लाइट, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे मैटर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दे आर एमिटिंग द लाइट, सो दे एमिट द once the electron started oscillating they emit the electromagnetic waves and they re-emit the light, ठीक है। and इट इज़ नॉट द बाउंस बैक, जो हमें लगता है कि यहाँ से लाइट होके यहाँ से बाउंस बैक हो गई, इट इज़ नॉट द सेम बाउंस बैक लाइट, ठीक है। तो हेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर री एमिटिंग दैट लाइट, ठीक है। और वो एक
इस डायरेक्शन में जो होता है इट इज़ द पर्टिकुलर, ये इसी डायरेक्शन में हमारा एक वेव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। और ये लाइट यहाँ से तो और भी डायरेक्शन में जा सकती थी, बट ये इस तरीके से हमारा सरफेस होता है कि यहाँ पे जो एमिट करेंगे, बाकी जगह भी लाइट, बाकी जगह भी ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एमिटिंग द लाइट, बट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली देयर इज़ अ वेव इंटरफेरेंस, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो दैट्स वाई यू कुड एबल टू सी द दैट लाइट इज़ बीन that light has been strong intensity in this direction only, ठीक है। and here in what direction ये जो constructive interference होता है, अगर wave वाली terms पे देखें तो this constructive interference which has been happening, it is in when your incident light is equal to your reflecting light, ठीक है। incident or reflected, when your angle of incident, this angle of incidence is there, when this angle of R is there, at this angle only you will see the constructive interference, that's why ये जो यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी है और इस डायरेक्शन में भी इंटेंसिटी उतनी होगी, बाकी और किसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स यू कुड नॉट एबल टू सी द लाइट इन अदर डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज़ वन पर्टिकुलर, दैट इज़ व्हाट इज बीन हैपनिंग एट अ क्वांटम लेवल, ठीक है। नाउ अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरीके की होती है हमारी, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन योर लाइट इज़ बीन रिफ्लेक्टेड, ठीक है, लार्ज, जैसे कि इस केस में हुआ है, जब लाइट यहाँ से हुई तो लार्ज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। सारी की सारी लाइट आपकी हुई, ठीक है, और ये सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में आपकी लार्ज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, और बाकी डायरेक्शन में नेग्लिजिबल लाइट है जो आपको दिखेगी नहीं, नेग्लिजिबल इन अदर डायरेक्शन। तो यहाँ पे यू कुड सी देयर इज अ विजिबिलिटी जो है आपकी, दैट इज़ इन द लिमिटेड एंगल। तो आपका अगर आपकी योर आइज इज इन दिस, इतने में ही अगर आपकी इफ़ यू, यही आपको दिस से ओनली यू कुड एबल टू सी, ठीक है। सो विद दिस एंगल, तो यहाँ पे लाइट यू इफ़ यू सी कि लाइट आपको, यू कुड नॉट एबल टू सी लाइट इन अदर डायरेक्शन, और किसी डायरेक्शन में देखिए लाइट के पास, दिस इज ओनली लाइट यू कुड एबल टू सी, ठीक है। ठीक है, सो अनदर वे इज़ टू सी इट के, ठीक है, ये अब इसको पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हाउ डू यू सी अ ऑब्जेक्ट, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को देखता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, ये एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है आपका, एक तो ये होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन है कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ना आपकी, ये वाली जो है लार्ज इंटेंसिटी की इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लार्ज इंटेंसिटी की ये आई और ये लार्ज इंटेंसिटी की, और बाकी किसी डायरेक्शन में नेग्लिजिबल लाइट है, ठीक है। एंड इट इज़ विजिबल इन अ लिमिटेड एंगल, ठीक है, दैट इज़ विजिबल इन दिस एंगल, दिस लिमिटेड एंगल ओनली इट इज़ बीन विजिबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि आपको दिखता किस तरीके से है, हाउ यू सी द एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक तो होता है हमारे दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ल्यूमिनस मतलब जो लाइट एमिट कर रहे हैं, नॉन ल्यूमिनस जो लाइट एमिट नहीं कर रहे। ल्यूमिनस तो आप डायरेक्टली लाइट एमिट हो रही है वो आप डायरेक्ट देख लोगे, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उस पर क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आती है, ठीक है, दैट इज़ हाउ यू आर सीइंग। बट यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा, जो आप ये देख पा रहे हो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रेगुलर रिफ्लेक्शन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखते हैं हमारा होता क्या है, बिकॉज डिफ्यूज यहाँ पे क्या है कि आपकी जो लाइट जो एमिट कर रहा है दैट इज़ लार्ज इंटेंसिटी इन वन डायरेक्शन। अब यहाँ पे डिफ्यूज में क्या होता है, आपके रफ सरफेस होता है, द सरफेस इज क्वाइट रफ, तो यहाँ पे rays reflected in different directions, kind of a scattering, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट हुई, it is reflecting in this direction, 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 so they are, ये जो because of the irregular surface, because of this irregular surface, तो यहाँ पे जो rays है आपकी that has been reflected in multiple direction, ठीक है। so here has been scattering has been happening because यहाँ पे roughness of the scale is almost equal to your lambda of light, ठीक है। so यहाँ पे after reflection दे विल नॉट मीट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, सो दे विल नॉट फॉर्म एन इमेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है ना, यहाँ पे आके इसकी इमेज बन रही है, अगर यहाँ पे मैं स्क्रीन रख दूँ तो यू कुड एबल टू सी द इमेज ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ क्वाइट हाई, बट यहाँ पे अगर मैं ये वाली लाइट आ रही है और मैं यहाँ पे स्क्रीन रख दूँ तो यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनेगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, नो इमेज फॉर्म, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर नॉट मीटिंग अप एट पॉइंट, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इट इज़ बीन स्कैटरिंग ऑफ योर लाइट हो रही है, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे जो होगा आपका ये, दिस इज़ विजिबल एट ऑल एंगल, ठीक है। यहाँ पे जो होगा दिस विल बी विजिबल एट ऑल एंगल, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, इट विल बी विजिबल एट ऑल एंगल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लाइट आपकी हर जगह रिफ्लेक्ट हो रही है, हर जगह रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इट विल बी विजिबल, इसका विजिबल एंगल देखो कितना लार्ज है, ठीक है। ये पूरे एंगल पे आपको दिखेगा, लाइट इज बिन मूविंग एयर, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक जा रही है तो ये पूरे एंगल पे दिखेगा, और यहाँ पे कितनी थी लाइट, बस आपके इतने एंगल पे दिख रही थी बस आपको।
सो यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी डोंट सी द इमेज, हमें इमेज नहीं दिखेगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट ट्रैवल करके आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरा कोई रफ सरफेस है तो मेरे को इसकी इमेज नहीं दिखेगी यहाँ पे, आई कुड नॉट एबल टू सी द इमेज ऑफ इट, ठीक है। लाइक फॉर इंस्टेंस ये है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर इसकी जगह मिरर होता और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, तो यहाँ से लाइट आती, रिफ्लेक्ट होकर जाती, तो आई कुड एबल टू सी कि इस वाले ऑब्जेक्ट की मेरे को इमेज दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस। अगर यहाँ पे मेरी ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसकी जगह मेरे को बुक रखी हुई है, बुक क्या है मेरा, बुक का क्या है मेरा, बुक इज माई रफ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ से जब मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, इस पर लाइट ट्रैवल करेगी, तो दैट लाइट इज बिन स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, तो मेरे को क्या होगी, इस बुक की इमेज नहीं दिखेगी। और जो मिरर होता है, मिरर में क्या होती है, मेरी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे वो लाइट, मेरी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट इज बीन डायरेक्टेड, ठीक है। तो देयर आई कुड एबल टू सी द इमेज, बट यहाँ पे डिफ्यूज में मैं नहीं देख पाता। बट डिफ्यूज में क्या होता है, यू डोंट सी द इमेज बट यू सी एन ऑब्जेक्ट जो आपको दिखता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, बिकॉज लाइट यहाँ पे पड़ी और लाइट इज बीन ट्रैवलिंग इन ऑल द डायरेक्शन, देन ओनली यू कुड एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट तभी दिख रहा है ना आपको कि बिकॉज द लाइट इज बीन ट्रैवलिंग इन ऑल द डायरेक्शन, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो दिखता है दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो दिखेगा दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इमेज नहीं दिखती बिकॉज ऑफ, इमेज के लिए आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है, जो कि हमारा मिरर वगैरह से प्रोवाइड होता है, राइट। नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन हमने देख लिया, फिनोमेना होता क्या है। नाउ विल सी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, के रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या क्या जो लाइट के साथ जो हो रहा है उसमें क्या क्या है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट हो गई, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट जा रही है, क्या मतलब व्हाट इज़ द एंगल, किस प्लेन में जा रही है, तो ऑल दिस फिनोमेना दैट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। लॉज रिफ्लेक्शन क्या है, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफ्लेक्टिंग द बीम ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, ठीक है। यहाँ से आई और द सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, दैट इज़ अ मीडियम, ठीक है। ये दो मीडियम को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, दैट इज़ अ लाइन, ठीक है, इंटरफेस है ये। तो यहाँ पे पहला जो लॉ कहता है मेरा, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द नॉर्मल लाइट दे आर इन द सेम प्लेन, ठीक है, दे आर इन द सेम प्लेन। ये मेरा प्लेन है, तो इसी प्लेन में मेरा इंसिडेंट लाइट आएगी, नॉर्मल भी मेरा इसी प्लेन में और रिफ्लेक्टेड लाइट भी मेरी इसी प्लेन में होगी। ये नहीं आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट किसी और प्लेन में चली जाए, दे ऑल आर इन द सेम प्लेन। सेकेंड जो मेरा लॉ कहता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ योर रिफ्लेक्शन इन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दिस यू गेट इट फ्रॉम द वी कॉल इट फॉर्मेट प्रिंसिपल। फॉर्मेट प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ लीस्ट टाइम, ऑलवेज लाइट को अगर मेरा ए से बी तक जाना है, ठीक है, ए से बी तक, तो ये मेरा डायरेक्ट पाथ हो गया, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया। एक होगा अगर मेरे को रिफ्लेक्शन होकर जाना है इस वाले सरफेस से, देन इट विल गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, जब यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू टेक द लीस्ट टाइम। बट यहाँ पे क्या है, हमारा सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है लाइट, यहाँ से यहाँ पे जा रही है, तो सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, दैट मीन्स सेम मीडियम में ट्रैवल करने का मतलब आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी सेम, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट आपकी चेंज किस तरीके से करती है, जब आप किसी और मीडियम में चले जाते हो, ठीक है। यहाँ पे म्यू आ जाता है ना, दैट इन द लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने देखा था। तो अगर आप सेम मीडियम में मूव कर रहे हो तो लाइट आपकी स्पीड सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, तो आपका हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि मेरे को लीस्ट टाइम में करना है। टाइम क्या होता है आपका, दैट इज़ योर डिस्टेंस ओवर स्पीड। आपकी स्पीड सेम है तो यू हैव टू सी कि लीस्ट डिस्टेंस इज, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हमारा फॉर्मेट प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पे लीस्ट टाइम होना चाहिए लाइट को ट्रैवल करने के लिए। बट यहाँ पे हमारा जब सी सेम है तो लीस्ट टाइम इज इक्वल टू लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इट इज़ इन द रिफ्लेक्शन केस, बट इट विल नॉट बी देयर इन द रिफ्लेक्शन में। ये नहीं होगा रिफ्लेक्शन में, क्योंकि आपकी लाइट चेंज हो जाती है, बिकॉज लाइट इज गोइंग टू गो इन अनदर मीडियम। तो यहाँ पे इस अनदर मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, तो देयर यू विल सी इट बेटर कि आपका जो फॉर्मेट प्रिंसिपल है, लीस्ट टाइम वाला प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल देयर, ठीक है, प्रॉपरली। बट यहाँ पे भी हमारा यही है कि लाइट शुड ट्रैवल इन लीस्ट टाइम, ठीक है, प्रिंसिपल ये है। बट यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन में आपका स्पीड सेम है, तो यू कैन एबल टू सी कि आपका लीस्ट डिस्टेंस भी इट इज़ योर लीस्ट टाइम ओनली, ठीक है। तो इसको यू कैन डू इट विद द ज्योमेट्री कि यहाँ से यहाँ तक में पहुँचने में लीस्ट टाइम करना है। तो व्हाट वी हैव टू डू कि वी विल टेक, लाइट इज बिन ट्रैवलिंग, बिकॉज लाइट कैन गो इन दिस डायरेक्शन, लाइट कैन गो इन दिस डायरेक्शन, लाइट कैन गो इन दिस डायरेक्शन, तो डिफरेंट एंगल हो जाएंगे ना, ये एंगल डिफरेंट, ये एंगल डिफरेंट। बट अल्टीमेटली हम लोग लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और वो किससे होता है हमारा, दिस फॉर्मेट प्रिंसिपल से, लाइट ट्रैवल इन ना लीस्ट टाइम। तो उसको देखते हैं, यू कैन डू इट सिंपली ज्योमेट्रिकली, आप इसको कर सकते हो। सो इफ़ दिस इज़ अ डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन डी, ठीक है, दिस इज़ नोन टू मी। नाउ ये कहाँ से ये टर्न कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये इफ़ दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ डी माइनस एक्स, या यहाँ से होगा दिस इज एक्स, दिस इज डी माइनस एक्स। तो मेरे को ये एक्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, और किस तरीके से करना है मेरे को कि मेरा जो टाइम लगे वो लीस्ट लगे, ठीक है। तो इफ़ आई टेक दिस इज़ माई एक्स, ये यहाँ से
रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड दिस माई एंगल थीटा 1, दिस माई एंगल थीटा 2, थीटा इंसिडेंट और थीटा ट्रांसमिशन ले लो और रिफ्लेक्शन ले लो, ठीक है। तो दिस इज एक्स, दिस इज टी माइनस एक्स। अब मेरे को ये एक्स को ऑप्टिमाइज करना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टोटल, यहाँ पे मेरे को पता है कि वी कैन स्पीड सेम है, तो विल जस्ट मिनिमाइज द ऑप्टिमाइजर दिस लेंथ, दिस टू लेंथ को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, विल पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, यू जस्ट डी एल बाई डी एक्स किया, इसको डिफरेंशिएट करो एंड यू जस्ट पुट इट इक्वल टू 0, देन फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग दिस, एंड दिस इज नथिंग बट एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट, सॉरी, सो हमारा दिस इज आई थीटा ई ना, तो मेरा है एक्स डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो दिस विल नथिंग बट इक्वल टू साइन थीटा 1 एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू साइन थीटा 2, ठीक है। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2, नाउ दिस एंगल्स आर क्वाइट स्मॉल, सो विल टेक थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ठीक है। दैट इज आर, सो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 मीन्स थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बोथ द एंगल्स आर सेम, दैट इज कमिंग फ्रॉम द फर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है। सो दीज आर माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो मेरा सरफेस के साथ बनता है दिस वी कॉल द ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जितना आपका ग्लांसिंग एंगल कम होगा, लाइक यहाँ से जाएगा ये, उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। जितना आपका ग्लांसिंग एंगल कम होगा उतना ज़्यादा ये रिफ्लेक्शन होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जितना कम ग्लांसिंग एंगल होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, दैट मीन्स वहाँ पे ट्रांसमिशन कम होगा, लाइट इस यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, अंदर कुछ नहीं जाएगी लाइट सेकेंड मीडियम में, और जितना ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, उतना लाइट जो होगी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, रिफ्लेक्ट कम करेगी, ठीक है। सो नॉर्मल जितना आएगा तो लेस रिफ्लेक्शन होगा, मोर ट्रांसमिशन होगा, जितना ग्लांसिंग एंगल के साथ आएगा, ठीक है, ये ग्लांसिंग एंगल ज़्यादा है अल्फा, तो उतना ही मेरा कम रिफ्लेक्शन होगा एंड इट विल बी लेस ट्रांसमिशन, मोर रिफ्लेक्शन विल बी देयर, ठीक है। When your angle of incidence and angle of reflection is 0, ठीक है, if it's coming like this, angle of incidence, angle of reflection is 0, this is called the normal incidence, and when your angle of reflection and angle of incidence and angle of reflection is 90 degree, we call it a grazing incidence, ठीक है। Now we'll see the vector form of our loss of reflection, ठीक है। तो we know कि हमारा जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल रे है एंड माई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, दे आर इन द सेम प्लेन, ये सिंपल मेरे सेम प्लेन में। तो मेरी इंसिडेंट रे यहाँ पे आई, ठीक है, वी टेक इट, हम इसको डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग द मैग्नीट्यूड, तो इसको मैंने ई आई, ये मेरा यूनिट वेक्टर ले लिया, देखिए मेरे को डायरेक्शन पता लग गई। सेम वे एन का मेरा, दिस इज माई यूनिट वेक्टर फॉर द एन एंड दिस इज माई ई आर, ठीक है, ई आर यूनिट वेक्टर फॉर माई रिफ्लेक्टेड रे। इसी रिफ्लेक्टेड रे का मेरे को ई आर निकालना है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ माई ई आर निकालनी है, बट मेरे को इंसिडेंट रे की दे रखी है, दैट इज माई ई आई, ठीक है। तो ये यहाँ से आया, ठीक है, और दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस ई आर, ठीक है। सो नाउ इसको दो तरीके से देखते हैं हम, पहले देखते हैं हम लोग, विल रिजॉल्व इट इनटू साइन एंड थीटा, तो दिस इज योर आई, दिस इज योर आर, ठीक है, दे बोथ आर द सेम एंगल थीटा है, तो इसको रिजॉल्व करते हैं हम पहले, ठीक है। तो दिस इज योर इस डायरेक्शन में और इधर रिजॉल्व करते हैं, तो ये नेगेटिव हो गई, ये आपकी पॉजिटिव एक्स है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस, दिस इज नथिंग बट थीटा, तो दिस विल बी थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस विल बी साइन थीटा, ठीक है, दिस इज योर साइन थीटा टी पॉजिटिव में, ठीक है, एंड हेयर इट विल बी योर एन डायरेक्शन नेगेटिव में, ठीक है। सो अगर मैं ये वाली डायरेक्शन टी ले रहा हूँ और ये वाली डायरेक्शन एन ले रहा हूँ, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट करता हूँ, एक तो मैंने इधर किया डायरेक्शन में, दैट इज़ माई टी कंपोनेंट एंड दिस इज माई एन कंपोनेंट नेगेटिव में, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज थीटा, तो दिस विल बी कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा एन, और इधर जो हो जाएगा मेरा दिस इज माई साइन थीटा टी, ठीक है। टी मेरी वाली डायरेक्शन है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। सेम वे मैं ई आर को ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, ई आर को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरा कंपोनेंट, दिस इज माई, ये मेरा कॉस थीटा, जो कॉस थीटा आएगा मेरा अलॉन्ग एन पॉजिटिव, और ये भी मेरा पॉजिटिव आएगा साइन थीटा अलॉन्ग टी पॉजिटिव, ठीक है। नाउ मेरे को ई आर निकालना है, आई विल डू ई आर माइनस ई आई किया, इन दोनों को मैंने माइनस किया, तो मेरे पास आ गया 2 cos थीटा एन, ठीक है, 2 cos थीटा एन। अब मैं cos थीटा को आई कैन फाइंड आउट, cos थीटा क्या होता है आपका, ठीक है। अगर मेरे को ये थीटा निकालना है तो आई नो दिस एंड दिस, ये दो वेक्टर पता है मेरे को, दो वेक्टर पता है इन दोनों के बीच में, अगर आपको cos थीटा निकालना है तो यू कैन यूज़ द डॉट प्रोडक्ट, दैट इज़ योर ई डॉट एन डॉट डिवाइडेड बाई ई डॉट इंटू एन डॉट, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड हो गया, ये ऊपर वेक्टर हो गए, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का 1 1 है, तो ये 1 हो जाएगा नीचे, तो यहाँ से आपका cos थीटा क्या आ जाएगा, ई डॉट एन डॉट, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, तो cos थीटा को मैंने लिख दिया ई आई इंसिडेंट इंटू डॉट एन डॉट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका नाउ एंगल जो होगा, एंगल इज क्वाइट क्रिटिकल, यहाँ पे जो एंगल होगा, सो दिस इज द योर रे, तो एंगल जो होता है मेरा व्हेन वी जॉइन टेल टू टेल, ठीक है। तो इसके ये क्या है, इसकी टेल ये होगी, अब मैं इसको आके लाके ये टेल टू टेल ज्वाइन करूँगा, सो दिस इज माई ई
जो है, और ये मेरा n है। तो नाउ एंगल इज दिस एंगल, ठीक है। दिस एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज पाई माइनस थीटा, ठीक है। द एंगल इज पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे एंगल आ गया मेरा पाई माइनस, तो कॉस हम इसको लिख सकते हैं ई आई डॉट एन इज इक्वल टू 1, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कॉस पाई माइनस थीटा। दिस इज माई एंगल पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे कॉस थीटा को लिख दिया माइनस ई आई इंसिडेंट डॉट एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैंने इसको माइनस आ गया यहाँ पे 2 ई आई डॉट एन और एन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ई आर निकालना था, ई आई मैं इधर ले गया। सो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, सपोज योर इंसिडेंट रे इज एस आई, ठीक है। सो इंसिडेंट रे इज़ योर एस आई। तो एस आई के दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका नॉर्मल होगा, ठीक है, एंड योर टेंजेंशियल होगा। किसी के भी हमारे कोई भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक टेंजेंशियल, ठीक है। तो अगर ये कंपोनेंट है तो ये मेरा टेंजेंशियल हो गया सपोज, और ये मेरा नॉर्मल हो गया, ठीक है। दिस माई नॉर्मल। अब मेरे को अगर इसको नॉर्मल में लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूँगा, दैट इज़ ई आई जो है मेरा, अगर ये है मेरा सपोज दिस माई इंसिडेंट, ठीक है। एस आई जो है मेरा इंसिडेंट है। अगर मेरे को इसको नॉर्मल में लिखना है, इसको मेरे को नॉर्मल में लिखना है, तो मैं किस तरीके से लिख लूँ, एस आई, ये मेरा अगर थीटा है तो एस आई कॉस थीटा, ठीक है। एस आई कॉस थीटा, जो मेरा एस आई कॉस थीटा इंटू इस डायरेक्शन को लिखूंगा मैं एन डैश, ठीक है। इस डायरेक्शन में लिख दिया मैंने एस आई कॉस थीटा एन डैश, ठीक है। एस आई कॉस थीटा को आई कैन राइट इट डाउन, इसको इसको एस आई कॉस थीटा को यू कैन राइट इट डाउन एस आई डॉट एन नो, इसको हम लोग क्या करते हैं, सपोज दिस इज़ योर इंसिडेंट रे एस आई, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल में और इसको मेरे को ट्रांसवर्स में लिखना है। तो मैं इसको अगर मैं नॉर्मल कोई भी अगर वेक्टर लें हम, इसको मेरे को ट्रांसवर्स में और नॉर्मल में लिखना है, तो ये आपका हो गया एस आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आपका एस आई कॉस थीटा हो जाएगा। ये वाला अगर मेरे को सॉरी ये अब अगर ये हम सॉरी यहाँ पे हम ये आपका एस आई लो एंड दिस इज़ योर नॉर्मल, ये आपका थीटा है, ये आपका अगर हम ये टी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको नॉर्मल में लिखना है तो दिस इज़ योर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, एस आई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। एस आई कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये एस आई क्या है, मॉड है, मॉड एस आई कॉस थीटा। तो एस आई मॉड कितना है, 1 है मेरा। यहाँ पे कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ एस आई डॉट इंटू एन डॉट, ठीक है। ये मेरा कॉस थीटा हो गया, और ये डायरेक्शन क्या है मेरी एन डैश, एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये मैं इसको नॉर्मल में लिख दिया। अब इसको टेंजेंशियल में लिखना है तो मेरे को क्या लिखना है पड़ेगा, एस आई वेक्टर में से अगर मैं ये वाला वेक्टर माइनस कर दूँ तो आपका जैसे होता है ना, आपका किसी भी वेक्टर को आपको अगर कंपोनेंट में लिखना है तो एक्स आई प्लस वाई आई लिखते हैं, ठीक है। और मेरे को एक्स आई वाला पता लग गया तो मैं वाई आई किस तरीके से लिखता हूँ, आर माइनस एक्स आई कर दिया मैंने, ठीक है। आर माइनस एक्स आई कर दिया तो आपको वाई आई मिल गया। तो मैंने वहाँ यहाँ पे यही किया, टेंजेंशियल में लिखा तो मैंने वेक्टर में से ये वाला कंपोनेंट माइनस कर दिया, तो एस आई में से मैंने ये वाला कंपोनेंट माइनस कर दिया तो मेरे को टेंजेंशियल मिल गया, ठीक है। सेम वे मैंने रिफ्लेक्टेड रे का लिख दिया, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे का भी मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे को भी रिफ्लेक्टेड रे का अगर मैंने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रखी है, फाई टेक दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दोनों पॉजिटिव ले रखी है, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नॉर्मल वाला नेगेटिव, बिकॉज डायरेक्शन मैंने यहाँ पे ये वाली पॉजिटिव कंसिडर करी है। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल इसका करूँ तो मेरा आ जाएगा ये इसका और आपका, सो हेयर इट विल बी इसका अगर मैं कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लें तो इट इज़ नथिंग बट आपका ये आपकी डायरेक्शन लेनी है तो दैट विल बी एस आई, ये आएगा आपका एस आई कॉस थीटा ही आएगा। और यहाँ पे कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ दिस, और माइनस में इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मैं हमने डायरेक्शन ये वाली कंसिडर करी है, बट हेयर द डायरेक्शन इज़ दिस फॉर दिस ई आर, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा को आई कैन राइट इट डाउन एस आई डॉट एन, और यहाँ पे एन जो है इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और सेम ऐसे टेंजेंशियल का हो जाएगा। टेंजेंशियल को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ कि मेन वेक्टर में से मैंने एस आर में से मैंने ये मेन वेक्टर को जस्ट अ सेकेंड, ऐसा करो, ये वाला भी छोड़ो, वी हैव सीन दिस वे। ये मेरे को अभी थोड़ा आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक हेयर, लेट मी जस्ट थिंक इट ओवर, मैंने यहाँ पे क्यों ये किया है, एंड आई विल कम बैक टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ना, आई विल डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ये वाला। तो इट इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग
बिकॉज दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन आर, जब हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, तो दिस वे ऑफ किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना उसके नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट में, और उसको किस तरीके से लिखना है, तो ये दैट वी कुड एबल टू डू इट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स इफ़ आई कुड एबल टू फिगर आउट कि कैसे हुआ ये. ठीक है, अभी ये वाला पोर्शन छोड़ो आप, ठीक है, डोंट लुक इनटू दिस क्वेश्चन. अभी बस यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है, तो दैट ऑल्सो गिव यू द वेक्टर फॉर्म. लेट मी थिंक ऑन दिस, ठीक है, ये मैं देखता हूँ, फिर देन आई विल कम बैक टू यू. ठीक है, सो विल प्रोसीड इट फर्दर. सो यहाँ पे दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट हेयर कि डायरेक्शन जो होगी आपकी, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी दैट विल बी द सेम. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो टेंजेंशियल लिया है दैट वी हैव सेम टेकन द सेम. हाँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हमारा यूज़ हुआ है, डायरेक्शन अलोंग द सरफेस इज़ इन द सेम फेस बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, तो हमारा इसका जो कंपोनेंट इधर वाला होगा, सो यहाँ पे जो होगा दैट विल बी सेम फॉलोड हेयर. ठीक है, देयर विल बी ए कंटिन्यूटी हेयर. तो हमने एक्जैक्टली यहाँ पे जो टेंजेंशियल था वो मैंने एक्जैक्टली यहाँ पे टेंजेंशियल डाल दिया. ठीक है, और यहाँ पे इसमें हमने क्या किया, नॉर्मल कंपोनेंट में क्या किया हमने, इसका हमें यहाँ पे कॉस थीटा ही तो चाहिए था, बस यहाँ पे इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, अगर यहाँ पे एस आर है आपका, तो एस आर का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज़ योर एस आर मॉड कॉस थीटा. ठीक है, एस आर मॉड कितना है आपका 1 है, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा आपने यहाँ से ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज़ एस आई डॉट एन डॉट. ठीक है, तो एस आई डॉट एन डॉट ले लिया मैंने, यहाँ पे माइनस साइन बिकॉज हमने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रखी है, और अगर हम ये रिफ्लेक्टेड रे ले रहे हैं तो इसकी ये वाली डायरेक्शन में आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन ले लिया. और ये वाली जो कन्फ्यूजन हो रही थी मैंने, वाई वी शुड टेकन इट इक्वल टू दिस, तो द रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज डायरेक्शन इंटरफेस के अलॉन्ग इट विल नॉट बी चेंज. बिकॉज यहाँ पे इंटरफेस के अलॉन्ग हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्शन अलॉन्ग द इंटरफेस सेम कंटिन्यूटी विल बी मेंटेन. तो इसलिए मैंने टेंजेंशियल ये वाली चीज़ सेम एज रिपीटेड इट हेयर. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो आपका आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस एडअप होके आपका आ जाएगा सेम वही इक्वेशन जो हमने यहाँ पे निकाली है. ठीक है, एक्जैक्टली सेम इक्वेशन आ जाएगी आपकी. ठीक है, राइट. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. एक बार ये दोबारा देख लेना, अगर नहीं आएगा समझ तो यू लेट मी नो, आई विल डिस्कस इट अगेन. ठीक है, बट मेरे को यही कन्फ्यूजन हो रही थी, वाई हैव टेकन इट सेम. ठीक है, तो इट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. नेक्स्ट देखते हैं हम अपना प्लेन मिरर्स देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्लेन मिरर्स. तो प्लेन मिरर्स क्या है हमारे, तो प्लेन मिरर्स इज़ बिन रिफ्लेक्टेड कि ये मेरा ट्रांसपेरेंट प्लेट है, दिस इज़ माई पॉलिश्ड प्लेट. ठीक है, तो फ्रॉम हेयर द reflection has been happening. ठीक है, from here the reflection has been happening. So this is your reflecting side. We symbolically is going to represent it like this. This is my reflecting side and this is my polished side. So reflecting side से ही हमारा all the light will be reflected from this side. ठीक है, so we'll see the image formation on the plane mirror. ठीक है, suppose ये आपके you're having this image in front of the plane mirror. ठीक है, तो यहाँ से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, यहाँ से लाइट गई, ठीक है, ट्रैवल करी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से इट इज़ गोइंग टू गो हेयर इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सेम वे विल टेक, तो यहाँ पे अगर ये देखोगे ना तो लाइट हमेशा इट इज़ इसके सारी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी. इट इज़ नॉट जस्ट वन डायरेक्शन, बट हम फ्यू रेज वी सेलेक्टेड सो दैट ये थोड़ा क्लस्टर्ड ना लगे, तो दैट्स वाई वी सेलेक्टेड 2 रेज. 2 रे यहाँ से निकली, ठीक है, वो यहाँ पे गई. ठीक है, सेम वे या एक भी रेज से कर सकते हो आप कि एक रे यहाँ से निकली, इधर गई, ठीक है, एंड इफ़ यू सी दिस इट इज़ गॉन देयर, और उसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे इट विल गो हेयर. ठीक है, पीछे एक्सटेंड करेंगे इट विल गो हेयर. एक और रे यहाँ से निकाल लो सो दैट यू विल गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा ये पी. ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, या तो आप ऐसा करो, एक रे ने यहाँ से निकालो, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करी इस पर और एक इधर चली गई. ठीक है, तो ये अगर इसको एक्सटेंड करेंगे इट विल बी कमिंग फ्रॉम दिस साइड. ठीक है, दूसरी क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर अगर मैं डालूँ तो ये परपेंडिकुलर ही वापस आएगी. ठीक है, बिकॉज नॉर्मल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में नॉर्मल में हमने देखा था परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर वापस आएगी, तो दैट मीन्स इसको पीछे एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा. सेम वे आप ये नीचे वाले का निकाल लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक ये इधर ले लो, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी, ये नीचे गई, पीछे बैक एक्सटेंड किया और एक परपेंडिकुलर ले लो, परपेंडिकुलर ये रिटर्न हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा. से तो आप देखोगे इसकी इमेज जो फॉर्म हो रही है, दिस इज़ द इमेज. ठीक है, सो वेयर एक्जैक्टली इज़ द इमेज, सो
इट इज़ सीम्स टू बी इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर लग रही है, ठीक है. इट सीम्स टू बी इनसाइड द मिरर, यस इट इज़ इनसाइड द मिरर, बट how do you see the image? Because it has to, the light should reflect on it, then only you could able to see the image. Is there any light inside the mirror? No, there is no light inside the mirror. So there is a contradiction कि आपको इमेज दिख रही है but there is, इमेज देखने के लिए तो लाइट चाहिए but there is no light inside the mirror. So this both are the contradictory things, ठीक है. So mirror क्या बेसिकली आप देखते हैं हमारा हो क्या रहा है कि why the brain perceive कि ये यहाँ पे आपकी इमेज है. तो मिरर बेसिकली क्या करता है, जस्ट इट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इट डज नॉट क्रिएट और स्टोर इमेजेस. जैसे यहाँ पे लगता है ना, हम मिरर के में सामने देखते हैं तो लगता है पीछे कुछ हमारी जो इमेज बनती है तो पीछे कुछ स्टोर है इमेज में, ठीक है, या पीछे या मिरर क्रिएट कर रहा है. मिरर डज नॉट क्रिएट और डज नॉट स्टोर एनी इमेजेस, इट्स जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका पी एंड पी डैश जो बन रहा है हमारा, जैसे पी पी डैश ये हिट करेगा यहाँ पे, पी पी डैश ये हिट करेगा एंड इट इज़ आफ्टर हिटिंग द मिरर इट्स जस्ट गोइंग टू रिफ्लेक्ट एंड इट डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज करेगा. तो डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज हमारा पीछे जाके क्या बनेगा, हमने देखा था दिस इज़ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाता है. इंसिडेंट अगर ये कर रहा होता तो दैट मीन्स ये कहीं पे इंसिडेंट कर रहा होता तो देन इससे पहले अगर ये इंसिडेंट कर रहा होता देन दिस विल बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब क्या है, यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज हो रहा है, दैट मीन्स वी आर एक्सटेंडेड एट द बैक. तो दिस इज़ माई वर्चुअल, दिस इज़ योर वर्चुअल इमेज, ठीक है. सो यहाँ पे आपकी रियल इमेज नहीं बन रही, ठीक है, बिकॉज इज डाइवर्जिंग आफ्टर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज कर रहा है, इधर डाइवर्ज कर रहा है और ये नीचे से जा रहा है, इधर डाइवर्ज कर रहा है. रियल इमेज नहीं बनेगी. बट हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, जब हम देखेंगे इसको तो हमारा ब्रेन क्या करेगा कि ब्रेन बिकॉज इज ऑलवेज थॉट लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो ये वाली जो लाइट यहाँ से डाइवर्ज होकर आ रही होगी हमें ये लगेगा पीछे से यहाँ से कहीं से आ रही है. सेम वे ये वाली जो डाइवर्ज होकर आ रही होगी हमें लगेगा पीछे से कहाँ से ये कहीं आ रही है, ठीक है. सो ब्रेन जो क्या करेगा, आई एज्यूम दैट द लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इट विल ट्रेसेस इट बैक एंड इट इंटरप्रेट द सोर्स ऑफ लाइट विल बी दिस, ठीक है, इंटरप्रेट द सोर्स ऑफ लाइट विल बी दिस एंड दिस इज व्हाट इज द वर्चुअल इमेज. बट द लाइट इज नॉट एमिटिंग फ्रॉम इट, बट इट इज जस्ट कि योर ब्रेन एज्यूम it as a light travel in the straight line, so it will just retraces the path back. Light must be coming from here, ठीक है. ये ब्रेन को लगेगा लाइट यहाँ से कहीं से आ रही होगी, तभी ये आपका ये वाली आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है. दैट्स वाई यू कुड एबल टू सी दिस, ठीक है. सो दैट इज हाउ द इमेज फॉर्म फ्रॉम द प्लेन मिरर, राइट. नाउ विल सी इमेज कंस्ट्रक्शन. सो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती है हमारी इमेज इन द प्लेन मिरर, ठीक है. सो प्लेन मिरर में हमारा वी सी द इमेज कंस्ट्रक्शन. सो दिस इज अ प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर को बनाने के लिए, इमेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो विल जस्ट टेक के टॉप मोस्ट, अगर हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट परपेंडिकुलर निकाल दो, ठीक है. बिकॉज परपेंडिकुलर क्या करेगी, यहाँ जाएगी और इससे परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, ठीक है. तो यही जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ब्रेन को क्या लगेगी, ये पीछे से आ रही है कहीं से रिफ्लेक्ट होकर. सेम वे बॉटम वाले से यहाँ से लाओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया, इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है. इधर गई रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो ब्रेन को क्या लग रहा होगा, इट इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम हियर, ठीक है, ठीक है. अब थर्ड एक जो रे होगी वो इसके इंटरसेक्शन पे, जहाँ पे आपका ये ऑप्टिकल एक्सिस, तो ये वाला जहाँ से कनेक्टेड है, दिस इज व्हाट वी कॉल द ऑप्टिकल एक्सिस. और आपका जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे थर्ड रे लगाओ, ठीक है. दिस इज माई थर्ड रे एंड इट्स, ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट इट हियर. अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, इफ आई एम गोइंग टू सी इट फ्रॉम हियर, इफ आई एम गोइंग टू सी इट फ्रॉम हियर, मुझे क्या लग रहा होगा, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस, ठीक है. तो मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँगा. नाउ इफ यू एक्सटेंड दिस, तो ये मेरा यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द इमेज हियर, ठीक है. मेरी इमेज बन जाएगी. इंटरसेक्ट कर रहा है तो मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट आ गया, बॉटम मोस्ट पॉइंट मेरा ये है. यहाँ से इन दोनों को अगर मैंने कनेक्ट किया, दिस इज माई इमेज, ठीक है. नाउ इफ यू सी दिस एंगल, ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है. कॉन्ग्रुएंट मतलब इनके सारे एंगल सेम, सारी साइड सेम. जब ये कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स ये शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है. ये दोनों इक्वल है एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है. यहाँ पे आपका डी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल टू योर इमेज का डिस्टेंस, बट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड इमेज का डिस्टेंस, वी आर ओनली टेकिंग द मैग्नीट्यूड, ठीक है. सेम ऐसे ही आपकी हाइट जो है, हाइट इज ऑल्सो सेम, ठीक है. इन द प्लेन मिरर यू गेट इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द हाइट ऑफ योर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू योर हाइट ऑफ योर इमेज, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट इज द इमेज कंस्ट्रक्शन इन द प्लेन मिरर, ठीक है. अब रिगार्डिंग द प्लेन मिरर वी आर गोइंग टू सी सम पॉइंट्स. सो प्लेन मिरर में क्या होता है हमारा, रियल इमेज की वी गेट द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है. रियल इमेज है ये आपकी
ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की यू विल गेट द रियल इमेज, ठीक है, इन द प्लेन मिरर। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि लाइट इज कन्वर्जिंग, ठीक है, यहाँ से कहीं से आ रही होगी, लाइट इज कन्वर्जिंग एंड इट इज़ कन्वर्जिंग एट सम पॉइंट, बट यहाँ पे क्या है, मिरर है, इससे क्या होगी आपकी लाइट, यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड। तो एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप देखोगे, लाइट इज गोइंग टू फॉर्म एन इमेज हेयर, ठीक है, लाइट इज गोइंग टू फॉर्म एन इमेज हेयर, ठीक है। फॉर द प्लेन मिरर, फॉर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट यू विल गेट अ रियल इमेज, ठीक है। फॉर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट यू विल गेट अ रियल इमेज, राइट। प्लेन मिरर में क्या होता है आपका, रियल ऑब्जेक्ट, योर इमेज इज़ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, योर इमेज इज़ रियल, ठीक है। तो दैट इज़ द इमेज फॉर्मेशन इन योर प्लेन मिरर। और आपकी जो इमेज होती है दैट इज़ अपराइट, ठीक है। तो आप अगर आपका हेड ऊपर है, टेल लेग नीचे है, तो इमेज जो बनेगी उसमें आपका हेड ऊपर होगा और आपके लेग्स नीचे होंगे, दैट इज़ व्हाट अपराइट। और आपकी इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, आपका हेड ऊपर हो गया, यहाँ पे देखो हेड नीचे हो गया, तो दिस इज योर इन्वर्टेड इमेज, सो दिस इज रॉन्ग। आपकी जो प्लेन मिरर में बनती है अपराइट बनती है, हेड ऊपर रहेगा तो इमेज में भी हेड ऊपर रहेगा, लेग नीचे रहेंगे तो लेग नीचे रहेंगे, ठीक है। बट इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर ये मिरर है मेरा, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है मेरी, दिस इज माई डायरेक्शन, ठीक है, इस तरीके से मेरी डायरेक्शन है। बट जो इमेज बनेगी वहाँ पे डायरेक्शन विल बी दिस, ठीक है, ए बी, यहाँ पे इन्वर्ट हो गई आपकी ए डैश बी डैश, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इट विल बी लिटरली इन्वर्टेड, बट वर्टिकली इट इज़ अपराइट, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से करनी है, अगर आपको जैसे इस पेन की लेनी है तो हमेशा एक परपेंडिकुलर ऑफ टू द प्लेन, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और एक इसको यू विल गेट एट द पॉइंट ऑफ योर इंटरसेक्शन, ठीक है, ये एंगल विल बी इक्वल टू एंगल, और इसको पीछे एक्सटेंड कर दोगे, यू विल गेट दिस, ठीक है। और ये वाला तो आपका ऑप्टिकल सेंटर पे होगा, तो यू कैन गेट द इमेज, ठीक है। सो हम लोग ऐसा करते हैं, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी हमारे थोड़ा बहुत रह गया था, फील्ड ऑफ व्यू, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, ये हम दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े बहुत क्वेश्चन और करेंगे हम प्लेन मिरर के, देन विल स्टार्ट विद देखते हैं, विल स्टार्ट विद द स्फेरिकल मिरर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक और रह गए थे, सो इट्स ऑलरेडी मोर देन एन आवर, सो विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो ऑलराइट, थैंक यू।